بہت زبردست مثال دینے جا رہا ہوں. جو شخص اپنی بنیاد کو چھوڑ بنیاد سے رشتہ ختم کر لے گا وہ شخص کبھی ترقی نہیں کر سکتا ہے, کبھی بلندی پر نہیں پہنچ سکتا. نے ایک پتنگ کو دیکھا ہوگا, پتنگ اڑتی ہے, کیوں اڑتی ہے؟ ہم نے اس پتنگ کو اڑایا, آگے بڑھی, ہم نے ڈھیل دی, وہ اور آگے بڑھی, ہم نے اور ڈھیل دی, ہلکا سا اشارہ کیا, پھر ڈھیل دی, وہ اور آگے بڑھی. ہوا اس کو بلندی پر لے جا رہی ہے. وہ پتنگ بلندی پر کیوں پہنچی؟ کون لے کے گیا؟ ہوا. لیکن تھوڑی دیر کے بعد آپ دیکھتے ہیں دوسری پتنگ آتی ہے اور اس پتنگ کی ڈور کو کاٹ دیتی ہے, اس کے دھاگے کو, مانجے کو کاٹ دیتی ہے. میں کہتا ہوں ہوا تو وہی ہے جو ابھی اس پتنگ کو اوپر لے کے جا رہی تھی, لیکن جب اس پتنگ کی ڈور کٹتی ہے تو پھر ہوا اس پتنگ کو اوپر لے کر کیوں نہیں جاتی؟ ابھی پتنگ اوپر لے کر جا رہی تھی, لیکن ابھی ہوا اس پتنگ کو اوپر لے کے جا رہی تھی, لیکن جب پتنگ کی ڈور کٹتی ہے تو پھر وہ ہوا اس پتنگ کو اوپر نہیں لے جاتی ہے, بلکہ اس کو زمین پر آنا پڑتا ہے. وہی پتنگ جو ابھی اوپر اڑ رہی تھی اب ڈور سے رشتہ توڑتی ہے تو وہ ہچکولے کھاتے ہوئے, جمپنگ کرتے ہوئے, کولا منڈیاں کھاتے ہوئے وہ زمین پر گرتی ہے. اور زمین پر بھی پھر وہی حال ہوتا ہے. چھچورے لڑکے, ان پڑھ لڑکے محلے کے اندر جن کو اسکولوں کالجوں میں جانے کی فرصت نہ ہو, ایسے چھچورے لڑکے اس پتنگ کے اوپر ٹوٹ پڑتے ہیں اور اس کی چھینا جھپٹی کر کے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں. یہ پتنگ جو آسمان کی بلندی کو چھو رہی تھی اس لیے کیونکہ وہ اپنی بنیاد سے جڑی ہوئی تھی, اپنی ڈور سے رشتہ مضبوط کی ہوئی تھی, بلندی پہ جا رہی تھی. لیکن جب اس کی ڈور کو, اس کے دھاگے کو کاٹ دیا گیا, اس کے بنیاد سے کو توڑ دیا گیا, تو پھر وہ پتنگ پھر ایک بالش بھی اوپر نہیں جا سکی. پھر وہ کلا منڈیاں کھاتے ہوئے, جمپنگ کرتے ہوئے زمین کی اوپر آتی ہے, زمین پر آتی ہے اور گرتی ہے, اور زمین پر بیٹھے ہوئے لڑکے اس پتنگ کو پھاڑ دیتے ہیں, لوٹ لیتے ہیں. ایک پتنگ پر 20 لڑکے گر پڑتے ہیں کہ ہمیں مل جائے, ہمیں مل جائے, اور چھینا جھپٹی میں اس پتنگ کے پر کھچے اڑ جاتے ہیں. وہ پتنگ زمین پر کیوں آئی؟ پتنگ کا ڈور سے کٹ کر زمین پہ گرنا ہمیں یہ میسج دے رہا ہے کہ پتنگ نے اپنی ڈور سے اپنا رشتہ توڑ لیا ہے. جب اس نے اپنی بنیاد سے رشتہ, کنیکشن ختم کر لیا ہے تو اب بلندی نہیں ملے گی, آسمان کی اونچائی نہیں ملے گی. اب بنیاد سے رشتہ ختم کرنے کے بعد زمین پر آنا پڑے گا. ذلت اس کا مسکن بنے گی, ذلت اس کا مقدر بنے گی. اب وہ بلندی نہیں کر سکتی, بلندی پر نہیں جا سکتی ہے کیونکہ بنیاد سے اس نے اپنا رشتہ توڑا ہے. مسلمانوں, جب تک تم قرآن سے, ایمان سے اپنے رشتے کو مضبوط رکھو گے بلندی کرو گے, اللہ کی قسم اوپر جاؤ گے, اللہ کی قسم عزت ملے گی. مسلمانوں, نوجوانوں, تمہاری بنیاد ہے ایمان. جب تک ایمان سے اپنا رشتہ مضبوط رکھو گے ترقی کرو گے, بلندی پر جاؤ گے. اور جب ایمان سے اپنا رشتہ ختم کرو گے تو دنیا تمہیں اپنا لقمہ بنا لے گی, دنیا تمہیں اپنے اندر سمو لے گی, اور تم دنیا کی انگلیوں کے اشاروں پہ چلو گے. تمہیں ڈانس کرایا جائے گا, تمہیں نچایا جائے گا, تمہیں پھرایا جائے گا, تمہیں اپنے انگلیوں کے اشاروں پر چلایا جائے گا. اس لیے تمہیں چلنا پڑے گا کیونکہ تم نے اپنی بنیاد سے اپنا رشتہ ختم کر لیا ہے, تم نے اپنی بنیاد سے اپنا رشتہ توڑ لیا ہے. اگر چاہتے ہو ترقی کریں, اگر چاہتے ہو کہ بلندی پر جائیں, اگر چاہتے ہو کہ حکومت ملے, سرداری ملے, تو تمہیں ایمان کے ساتھ اپنا رشتہ مضبوط کرنا ہوگا, اپنی بنیاد کے ساتھ اپنا تعلق جوڑنا ہوگا. وہ بھیڑوں بکریوں کو چرانے والوں کو عزت کس نے دی ہے؟ اسی قرآن نے دی ہے. وہ عمر جو کبھی کوئی غصہ برداشت نہیں کرتے تھے, وہ عمر جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گردن بھی اڑانے کے لیے نکلے تھے, اس عمر کو 22 لاکھ مربع میل کا حکمراں کس نے بنایا؟ اس عمر کو اتنی بڑی زمین کی ملکیت کس نے عطا فرمائی ہے؟ اتنا بڑا بادشاہ, اتنا بڑا حاکم کس نے بنایا ہے؟ 22 لاکھ مربع میل پر حکومت کس نے کی؟ حضرت عمر نے. حضرت عمر فاروق کو حکمراں بنایا تو اسی قرآن کریم کی دعوت نے, اسی قرآن کریم نے, اسی ایمان کے رشتے نے. عمر کی حیثیت ایمان لانے سے پہلے کیا تھی؟ لیکن جب عمر نے ایمان سے اپنا رشتہ جوڑا تو ترقی کرتے گئے. اتنی ترقی کی کہ اللہ
अल्लाह के नबी को भी कहना पड़ा, लऊ कान बादी नबीयुल कान उमर, अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो वो हजरत उमर होते। उमर ने इतनी तरक्की की कि 22 लाख मुरब्बा मील इतनी जमीन पर उन्होंने हुकूमत करके दिखाई, और इतनी शानदार हुकूमत करके दिखाई कि महात्मा गांधी को भी ये कहना पड़ा कि उमर फारूक जैसी हुकूमत अगर आज भारत के अंदर कायम हो जाए तो देश के अंदर से खून खराबा मिट जाए, देश के अंदर से खून खराबा खत्म हो जाए, अमन और शांति पैदा हो जाए। मेरी बात आपने अच्छी तरीके से समझ ली है। ईमान से जितना रिश्ता हमारा मजबूत होगा उतना हम आगे बढ़ेंगे, तरक्की करेंगे। इन मिसालों से अब हम समझ गए हैं कि हम जलील क्यों हैं, हम रुस्वा क्यों हैं, बदनाम क्यों हैं। इसका जवाब देने की जरूरत नहीं, क्योंकि आपके पास इसका जवाब है, आप जानते हैं इसका जवाब, और जवाब देने में कोई हर्ज नहीं। इसकी वजह यह है कि हमारी बुनियाद कमजोर है, हमने अपनी बुनियाद से अपना रिश्ता मजबूत नहीं किया। एक और मिसाल देता हूं। ईमान जिसके अंदर, यानी हमारी बुनियाद जिसके अंदर जितनी मजबूत होगी उसके अंदर उतना ही अल्लाह का डर होगा, और लोगों का डर उसके अंदर बिल्कुल नहीं होगा। जो जितना ज्यादा जिसके अंदर ईमान होगा वो उतना ही ज्यादा अल्लाह से डरेगा और लोगों से उतना ही ज्यादा बेखौफ होगा। कभी आपने देखा है, एक मिसाल पर गौर कीजिए, अभी थाने से एक पुलिस वाला आपके बस्ती में आ जाए, उसको मुखबिरी मिले कि फला जगह शराब वराब पी जाती है और वो आ जाए, उसके हाथ में ना लाठी हो, ना डंडा हो, ना पिस्टल हो, ना बंदूक हो, लेकिन वर्दी में आया हो, और आप जानते हैं कि ये मेरे थाने का पुलिस है, तो आप ईमानदारी के साथ बताइए कि अकेला पुलिस वाला है, इसके बावजूद पूरा मोहल्ला, पूरा गांव उसके सामने ऐसे भीगी बिल्ली के तरह खड़ा रहेगा। साहब यहां सुना है कि शराब पी जाती? नहीं साहब, आपने गलत सुना है, समझ लो। अगर मुझे पता चला और कोई पकड़ा गया तो बहुत अच्छा नहीं होगा, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। वो अकेला पुलिस वाला पूरे गांव पर, पूरे मोहल्ले पर धौंस और धमकी देता चला जाता है, जबकि उसके पास ना पिस्टल है, ना बंदूक है, ना राइफल है, ना लाठी है, ना डंडा है, लेकिन अकेला है, चीखता चला जा रहा है, चिल्लाता चला जा रहा है, और हम उसके सामने खड़े। जी जी जी, नहीं साहब, कोई बात होगी तो आपको जरूर इन्फॉर्म कर देंगे। अरे साहब, हम तो कानून का साथ देते हैं। अरे साहब, आप हाँ हाँ साहब साहब कहते चले जाएंगे। मैं पूछना चाहता हूं कि उस अकेले पुलिस वाले से पूरा गांव क्यों डरता है? या यूं कह लो कि पूरे गांव उस एक पुलिस वाले के सामने भीगी बिल्ली क्यों बना रहता है? मैं इसको यूं भी कह सकता हूं कि वो एक पुलिस वाला पूरे गांव वालों के सामने अपने आप को सबसे ताकतवर क्यों समझता है? क्या पूरे गांव के लोग उसके ऊपर टूट पड़ेंगे तो क्या वो सबका मुकाबला कर लेगा? नहीं कर पाएगा। लेकिन इसके बावजूद वो सबसे ज्यादा ताकतवर समझता अपने आप को। क्यों? क्योंकि वो जानता है कि मैं अकेले नहीं आया हूं, मैं सरकारी ड्यूटी पर हूं और मेरे साथ सरकार की मदद है। और गांव वाले भी ये समझते हैं ये अकेला है जरूर, लेकिन ये अकेला नहीं है, आया है अकेला, लेकिन अगर एक थप्पड़ भी इसको मार दिया तो पूरा गांव मेरा छावनी में तब्दील हो जाएगा। क्योंकि अगर उसने एक फोन कर दिया तो मेरे पूरे गांव पर छापा मार दिया जाएगा, छावनी में तब्दील। ये अकेला आया है, लेकिन अकेला है नहीं, सरकार की ताकत है इसके पास, सरकार की ताकत है मौलवी जर्जीस के पास। पूरे गांव के लिए अकेला काफी है, पूरा गांव डरता है। इसी तरीके से एक मोमिन, हम आपको नहीं कह रहे हैं, हमें नहीं मालूम कि आप में कौन मोमिन है कौन नहीं है, हम मोमिन कह रहे हैं। ईमान की इतनी देर तक जो हमने बहस की है और बताया है, उस रोशनी में मोमिन, जो मोमिन होगा वो उसी तरीके से किसी से डरेगा नहीं। उसके साथ आप चाहे कुछ कर डालिए, वो डरेगा नहीं, क्योंकि वो जानता है कि मैं अकेले नहीं हूं, ईमान की ताकत है मेरे साथ, अल्लाह है मेरे साथ,
जिस के अंदर जितना होगा ईमान, वो उतना ही निडर होगा, लोगों से नहीं डरेगा, सिर्फ अल्लाह से डरेगा। क्योंकि एक पुलिस वाला अकेले जब नहीं डरता, ऐसे ही एक अकेला सच्चा मोमिन भी किसी से नहीं डरता, क्योंकि वो जानता है कि मेरे पास ईमान की ताकत है। और उसकी मिसाल दूं आपको, जंगे बद्र हो रही है, बद्र का मैदान गर्म है, सहाबा की तादाद है सिर्फ 313, और इसके मध्य मुकाबिल जो लश्कर है वो है 1000 से ज्यादा। आपको यह भी बता दूं कि उन 1000 लश्कर के पास, काफिरों के पास तीर भी हैं, तलवारें भी हैं, ढाल भी हैं, नेजा भी है, घोड़े भी हैं। वो सब नौजवान हैं, हट्टे खट्टे तंदुरुस्त हैं, और सारी चीजें आलात हर्ब, जंग का हर सामान है उनके पास। और उनके मुकाबले में कितने हैं? 313। और ये 313 कौन है? जवान, बूढ़े और कुछ बच्चे जब मिलाए गए और इनकी गिनती तब जाकर होती है 313। और इन 313 लोगों के पास, इन 313 सहाबा के पास सिर्फ 2 घोड़े हैं। आलाते हर्ब का हाल यह है कि किसी के पास तीर है लेकिन छोड़ने के लिए कमान नहीं है, किसी के पास कमान है लेकिन छोड़ने के लिए तीर नहीं है, किसी के पास तलवार है लेकिन काफिरों के हमले से बचने के लिए ढाल नहीं है। वो तलवार चलाए लेकिन काफिर जब उस पर हमला करे तो अपना बचाव किससे करे? उसके पास ढाल नहीं है। अगर किसी के पास ढाल है तो चलाने के लिए तलवार नहीं है। फिर भी जंग है, लड़ रहे हैं। जरा आपने गौर किया है, ये कोई मुकाबला था कि एक तरफ 1000 से ज्यादा और एक तरफ 313। एक सहाबी के ऊपर 3 से ज्यादा लोग, और इसके पास एक चीज है तो दूसरी नहीं, और उनके पास सब कुछ है। कौन सी चीज है जो इन 313 सहाबा को उनके सामने लाकर खड़ा कर रही है और उनसे लड़ने पर मजबूर कर रही है? ये कौन सी चीज? बताने की जरूरत नहीं, ये वही ईमान है, ये उसी ईमान की ताकत है। और ऐसी कंडीशन में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सर सजदे में है जमीन पर। बद्र के मैदान में एक जानिब आपने अपनी पेशानी कच्ची जमीन पर रख दी है और सजदे में गिरे हुए हैं और ये दुआ कर रहे हैं सजदे में, अल्लाहुम्मा ला तुहलिक हाज़िहिल असाबा इन तहलिक हाज़िल असाबा लन तुअबद बअदल यौमि क़द्दु। ऐ अल्लाह, ये मुट्ठी भर जमात, ये मेरे चंद सहाबा, ये 10 साल मक्के की जिंदगी में मेरे दावत और तबलीग का नतीजा मदीना आने के बाद इन्होंने मजबूर किया है। ये मेरी 10 साल की, मैं 13 साल की, ये मेरी मक्के की मेहनत। आए मेरे परवरदिगार, मेरी 13 साल मक्के की मेहनत के बाद ये 313 लोग इस्लाम लाए हैं। यही मेरी जमा है, यही मेरी पूंजी है, यही मेरा सरमाया है, यही 13 साल की मेहनत का नतीजा है जो मैंने निचोड़ कर तेरे सामने पेश कर दिया। इलाहुल आलमीन, अगर ये 313 मुसलमान आज हलाक हो गए, मुझ पर ईमान लाने वाले मिट गए, ये 313 अगर आज खत्म हो गए, इन 313 को अगर आज बर्बाद कर दिया गया, इनको काफिरों ने अपने हमले में शिकस्त दे दी, अगर आज ये इस दुनिया से मिट गए,
लन तुअबद बअदल यौम, ऐ अल्लाह आज के बाद फिर कभी तेरी इबादत इस रूए जमीन पर नहीं होगी, आज के बाद फिर कोई अल्लाह अल्लाह कहने वाला ना होगा, आज के बाद फिर इस जमीन पर कभी सजदा न किया जाएगा। अल्लाहु अकबर की निदा आज के बाद नहीं आएगी। ऐ अल्लाह अगर तू चाहता है कि कयामत की सुबह तक तेरा नाम तेरा दीन बाकी रहे तो इन 313 मुसलमानों की हिफाजत फरमा। ये मेरी 13 साल की मेहनत का नतीजा है। ऐ अल्लाह तू इनकी हिफाजत फरमा। ये नबी की उस वक्त की दुआ भी थी जो सजदे में आपने पढ़ी थी। सजदे में अकेले और तन्हा सजदे में हम भी दुआ करते हैं, कुछ नहीं होता। या रब्बी या रब्बी या रब्बी, अल्लाह मुझे ये दे मुझे ये दे मुझे ये दे। ऊपर से आवाज आती है मेरे बंदे मैं तुझे क्या दूं, मांग तो तू ये रहा है लेकिन दूं तो कैसे दूं। मतअमुहु हराम, जो खाना खाकर आया है वो हराम है। वह मशरबु हराम, जो पीकर आया है वो भी हराम का है। वह मलबसहु हराम, जो कपड़ा पहन के आया है वो भी हराम की कमाई का है। वह गुज़िया बिल हराम, तेरे जिस्म में जो खून दौड़ रहा है वो हराम कमाई खा खा कर उसी का बना हुआ खून तेरे जिस्म में दौड़ रहा है। फअन्ना युस्तजाबु लिज़ालिक, ओ मेरे बंदे मैं तेरी दुआ सुनूं तो कहां से सुनूं, तू पूरा का पूरा नापाक है। खाना तेरा नापाक, कपड़ा नापाक, पानी नापाक, बदन में जो खून दौड़ रहा है वो नजिस और नापाक। आए मेरे बंदे मैं तेरी दुआ सुनूं तो कहां से सुनूं। अल्लाह सुनता नहीं है, ऐसे सुन लेगा अल्लाह। 13 साल की मेहनत के बाद का अल्लाह ये 313 बर्बाद हो गए तो कभी इस रूए जमीन पर तेरी इबादत नहीं होगी। अल्लाह अल्लाह कोई नहीं कहेगा। ईमान का जज्बा देखिए, क्या था ईमान, एक हजार से लड़ रहा। इमाम अहमद इब्न हंबल के पास एक औरत आती है, गौर करके देखिए इस औरत के सवाल के बाद हमारी हैसियत क्या रह जाती है, जरा तसव्वुर कीजिए। एक औरत आती है, कहती है कि इमाम साहब एक मसला पूछने आई हूं। कहा क्या मसला पूछते हो? कहा मैं चरखा चलाती हूं। चरखा जानते हैं ना, महात्मा गांधी वाला चरखा मालूम है ना। हम लोगों के यहां तो आज भी लगे हुए हैं कहीं कहीं। जो लोग हैंडलूम हाथ से कपड़ा बनाते हैं वहां चरखे भी हैं, हाथ से फिरता है, सूत काटते। तो क्या कहती है इमाम अहमद इब्न हंबल से वो औरत, इमाम साहब मैं चरखा चलाती हूं और दूसरे लोगों का सूद मजदूरी पर काटती हूं और उनसे मजदूरी लेती हूं। कभी कभी मैं रात में भी चरखा चलाती हूं जब मेरे पास तेल होता है। इस औरत के सवाल के बाद हमारी हैसियत क्या रह जाती है। सुने हमारी मां बहनें, औरतें ऐसी भी गुजरी है, सिर्फ लाइट मारने वाली औरतें हर वक्त नहीं होती हैं। सुने इमाम साहब मैं कभी कभी रात में भी चरखा चलाती हूं जब मेरे पास चिराग जलाने के लिए तेल होता है तो मैं चिराग जलाकर उसकी रोशनी में चरखा चलाती हूं, सूत काटती हूं। इमाम अहमद इब्न हंबल फरमाते हैं अल्लाह तुम्हारी रोजी में बरकत दे, रिस्क में बरकत दे। कहा इमाम साहब कभी कभी चिराग में तेल नहीं होता हमारे पास, लेकिन हमारे पड़ोस में खुला हुआ आंगन है, हमारे पड़ोसी का खुला हुआ आंगन है। कभी कभी उस आंगन में रोज चिराग जलता है, वो मेरे पड़ोसी का चिराग है लेकिन वो अपने घर में अपने आंगन में चलाता है और उस आंगन में उस चिराग की रोशनी कभी कभी मेरे घर पे आती है। अगर मैं उस रोशनी में चिराग जला सूत फिरा लूं, उस पड़ोसी की रोशनी में अगर मैं सूत फिराऊं, चरखा चलाऊं, तो पड़ोस की रोशनी से जो सूत में फिराऊं और उसकी कीमत मैं अपने मालिक से लूं तो यह कीमत मेरे लिए हलाल होगी या हराम होगी? क्या मैं उस रोशनी में जो चरखा चलाकर जो पैसा कमाऊं वो मेरे लिए जायज होगा या नाजायज होगा? तसव्वुर करो इमाम अहमद इब्न हंबल खा के चक्कर खा के गिर जाते हैं कि इस दुनिया में इस दौर में ऐसी औरतें भी मौजूद हैं जो तकवे का ऐसा मायार अपने अंदर पैदा की हुई है।
ऐसा मायार अपने अंदर पैदा की हुई है। इस तकवे की रोशनी में जरा तसव्वुर करो, हम कहां हैं, हमारी रोजी क्या है, हमारा माल क्या है, हमारी इनकम क्या है, हमारी इनकम आ कहां से रही है। इस औरत के सवाल के बाद हम तसव्वुर करें कि हम कहां खड़े हैं। फिर कहते हैं कि ये हमें परेशान कर रहा है, वो हमें परेशान कर रहा है, फला काज़ा। कुछ नहीं, हमारे अमाल हमें परेशान कर रहे हैं, हमारे करतूत हमें परेशान कर रहे हैं, हमारी बदअमली हमें परेशान कर रही है। अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह अलैह ने कोई जवाब नहीं, सिर्फ इतना कहा, ऐ अल्लाह की बंदी, अगर तुम्हें लगता है तुम उससे मांगने तो नहीं गई हो, तुमने चोरी तो नहीं की है, अगर उसके आंगन में रोशनी जल रही है और वो तुम्हारे आंगन में आ रही है, तो मेरे हिसाब से, इमाम अहमद इब्न हंबल ने कहा, उस रोशनी में, चिराग की उस रोशनी में अगर तुम सूत काट लेती हो तो मेरे हिसाब से कोई गलत तो नहीं है, लेकिन फिर भी अगर तुम परहेज करो और बचो तो ये तुम्हारे लिए ज्यादा बेहतर है। ये अहमद इब्न हंबल का, जबकि चोरी नहीं थी, वो जला रहा है, दरवाजा नहीं है, आंगन से आंगन मिला हुआ है और उसके आंगन से उस चिराग की रोशनी यहां आ रही है। तो इसमें भाई आप ये लाइट जल रही है, अब इधर रोशनी जा रही है, तो उस आदमी का क्या कसूर है? तुम अगर चाहते हो कि मेरी रोशनी मेरे घर तक रहे तो तुम्हें अपने घर का इंतजाम करना है, लेकिन अगर आपके घर की रोशनी और आपके बल्ब की रोशनी मेरे घर आ रही है और आप ये कहें कि अपना मेरी रोशनी तेरे घर क्यों आ रही है, हट अपना घर तोड़, तो आप गलत है ना। जरा तसव्वुर को, अहमद इब्न हंबल ने जब वो औरत जाने लगी, वो बूढ़ी औरत, तो अहमद इब्न हंबल रहमतुल्लाह ने लोगों से पूछा कि ये जिस बाप की बेटी है, इसका बाप कोई मामूली शख्स नहीं होगा, जरूर किसी अच्छे और नेक बाप की तरबियत होगी जिसने ऐसी नेक बेटी पैदा की है। जरा तसव्वुर करिए, नबी अकरम की दुआ इसलिए कबूल हुई क्योंकि आप सरापा रिज़्क़ हलाल इस्तेमाल करते थे। सहाबा की इसलिए मदद हुई उस जंगे बदर में क्योंकि किसी सहाबी ने माले हराम को अपना लुक़मा नहीं बनाया। मेरे भाइयों, 1000 का लश्कर फिर मगलूब होता है और 313 सहाबा को फतह होती है। ये 313 सहाबा जो लड़े, ये कौन सी चीज थी? ये वही ताकत थी, वही स्पिरिट थी। कौन सी? ईमान। अगर ईमान ना होता तो लड़ते? कुछ ना कुछ देर के लिए भी मानना पड़ेगा कि इस लड़की ने जो जज्बात में आके नारा लगाया था कर्नाटक में, इसके अंदर भी कुछ ईमानी हरारत थी, तभी तो ये अल्लाहु अकबर का लफ्ज निकला है। इसका इनकार नहीं किया जा सकता। और बाद में पता चला कि उस बच्ची का बाप आलिम है, वो एक मौलाना की बच्ची है, तो जाहिर बात है कि तरबियत तो अच्छी रही है। वरना आजकल सियासी लीडरों की लड़कियां कहां नारा लगाएंगे अल्लाहु अकबर? वो तो वक्त के धारे में बहते हैं, वो तो हिंदू लोगों का वोट लेने के लिए मंदिर में टीका भी लगवा लेंगे, वो तो मूर्ति के सामने भी खड़े हो जाएंगे क्योंकि हमें इनका वोट चाहिए। तो तरबियत का भी फर्क होता है। हम अपनी औलाद को कौन सी तरबियत दे रहे हैं, कैसी तरबियत होनी चाहिए, इस पर हमें गौर करना चाहिए। जंगे खंदक के बारे में कभी सोचा आपने? जंगे खंदक में कितने मुसलमान थे? आपसे अगर सवाल करें तो शायद बहुत कम लोगों को मालूम हो। सिर्फ 3000 सहाबा, 3000। और इन 3000 सहाबा का मुकाबला कितने काफिरों से था, कितने यहूदियों से था? 10,000 का लश्कर। कोई तकाबुल है? कोई मुकाबला है? एक तरफ 3000, एक तरफ 10,000। वो हथियारों से लैस, ये बेचारे फुल हथियार नहीं। इन 3000 सहाबा को जंगे खंदक पर काफिरों से लड़ने के लिए अपनी रजामंदी का इजहार जो इन्होंने किया, ये 3000 सहाबा के दिल में जो 10,000 का खौफ नहीं था,
وہ خوف نکالنے والی طاقت کیا تھی؟ اگر آپ سے سوال کریں تو میری اتنی تقریر کے بعد جو 1 گھنٹے سے زیادہ بولتے ہوئے مجھے ہو گیا، آپ اس نتیجے پر پہنچ گئے ہوں گے کہ 3000 صحابہ جو 10,000 کے مقابلے میں کھڑے ہوئے ہیں اور لڑ رہے ہیں، یہ صرف ایمان کی طاقت تھی. وہ 10,000 سے نہیں ڈر رہے ہیں، وہ صرف ایمان کی طاقت ہے. ان کے دلوں میں اگر ڈر ہے تو صرف ایک اللہ کا ڈر ہے. وہ کسی کا خوف ان کے دلوں میں موجود نہیں ہے، اور جیتے. ان کو فتح ہوئی، ان کو کامیابی ملی. ہم یہ ساری چیزیں بھول جاتے ہیں، ہمیں اس بات کا احساس نہیں ہوتا ہے. بھیا جلدی نکل جاؤ، بتاؤ یہ کہاں جا رہا ہوگا؟ اس کی تو شادی بھی نہیں ہوئی ہے، کہاں بھاگ رہا ہے؟ وہ دیکھو وہ چچا اٹھ کے جا رہے ہیں بیچ میں جب کوئی اٹھتا ہے تو مجھے پتہ نہیں کیوں اتنا ڈر لگتا ہے. ایک بار حیدرآباد میں پروگرام کر رہا تھا نا، تو بیچ میں ایک آدمی اٹھ گیا تو مجھے پتہ نہیں اٹھا، پیشاب کرتا ہے، سیدھے آیا میرا مائک پکڑ کے اور مائک پھینک دیا اٹھا کے. اور پھر اس کے بعد انڈے چلے، ٹماٹر چلے، جوتے چلے، چپل چلی. تو اس دن سے ایک دہشت تو ہوتی ہے نا، پھر بیچ میں اٹھ رہا کہ پھر کوئی کھڑا نہ ہو جائے. تو وہ اس دن سے یہ ہے بس بھائی، جس کو اٹھنا ہوا کرے وہ پیچھے بیٹھا کرے، جب چاہے تب نکل جائے. جو آدمی آگے بیٹھتے ہیں ان کو معلوم ہے نا ان کو کتنی بار پیشاب آتا ہے، زیادہ آتا تو پیچھے بیٹھو. اور میری تقریر ہو رہی ہے، پتہ نہیں پیشاب کیوں نہیں روک پاتے ہیں آپ لوگ. لوگ تو دل کی دھڑکنیں روک لیتے ہیں. ایک بار ڈاکٹر کے پاس گیا، ڈاکٹر میرا، ہم نے کہا ڈاکٹر صاحب ذرا وہ دیکھ لیجئے میرا پلس. بولا نہیں تمہارا تو ہائی ہوگا. ہم نے کہا ارے دیکھ لیجئے ڈاکٹر صاحب، اس کے بعد دوا. لیکن اب میں مان نہیں سکتا، ہمیں وہ تھرمامیٹر لگانے کی ضرورت ہی نہیں ہے. آپ کا پلس دیکھنا ہی نہیں ہے، آپ کا وہ کیا بولتے ہیں اس کو، بی پی، وہ آپ کا ہائی ہوگا، کچھ بڑا ہی ہوگا، نیچے نہیں ہو سکتا ہے. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب سن پڑ رہے ہیں، ہاتھ پیر ذرا کپی سی ہو رہی ہے. کہتا کہ جب آپ کی تقریر سن کے ہم لوگوں کے لیول ہائی ہو جاتے ہیں، ہم لوگوں کا بی پی ہائی ہو جاتا ہے، تو آپ کا کیسے لو ہو سکتا ہے؟ اس نے چیک نہیں کیا، اللہ کی قسم چیک نہیں کیا، ایسی دوا دی. بولا آپ کا نہیں کریں گے، ہمیں قسم ہے ہم بھی نہیں کریں گے آپ کا. اور نہیں کیا. پتہ نہیں وہ دیکھو بیچارے، دیکھو اب کیا کریں گے گھر جا کر. اچھا جتنا بولتے ہیں اتنا اور لوگ اٹھتے ہیں. تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ بھائی، تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ. ان کو کیا بولے ہم. وہ چچا جا رہے بیچارے، اب تو چچی کے لائق بھی نہیں، پھر بھی جا رہے ہیں. کیا کریں گے. اچھا چلیے اب آپ لوگ جاگ گئے ہیں، تھوڑی بہت نیند آ رہی ہوگی، اس کا غلبہ ختم ہو گیا ہے. سنیے تو اب آپ اندازہ لگائیے، وہ خندق 10,000 کا مقابلہ 3,000. کیا چیز تھی؟ وہی اللہ کا خوف، وہی اللہ کا ڈر. جیسے ایک پولیس والے میں یہ طاقت ہوتی کہ وہ اکیلا نہیں، سرکار کی طاقت ہے اس کے پاس، ایسی جو پکا سچا مومن ہے وہ ڈرتا نہیں ہے. اللہ کی طاقت ہے اس کے پاس، ایمان ہے اس کے پاس، ایمان کی طاقت ہے اس کے پاس، اس کو خوف نہیں ہوتا ہے، وہ لڑتا ہے، آمادہ ہو جاتا ہے. یہ واقعہ سنایا ہے لیکن پھر بھی آپ کو سنا دیتا ہوں. سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کیا میٹر تھا. ابو جہل کے سامنے کھڑی ہے، طبقات کے الفاظ ہیں، ابن سعد نے نقل کیا ہے کہ اس نے سمیہ کے کپڑے تک پھاڑ دیے، پھر بھی کہتی ہے نہیں اللہ ایک ہے. ابو جہل نے نیزہ لیا، نیزہ، طبقات کے الفاظ، وہ نیزہ اس کی شرمگاہ میں داخل کر دیا. سننا بہت آسان ہے لیکن ایک ہلکی سی کھروچ ہم برداشت نہیں کر سکتے ہیں. اس کی تو شرمگاہ میں نیزہ، ادھر سے ڈالا اس طرف نکال دیا، اور ہاتھ پیچھے سے بندھے ہو، وہ نیزہ پکڑ کے نکال بھی نہیں سکتی ہو. اور ایسی کنڈیشن میں بھی دیکھیے ایمان کی طاقت کیا. وہ یہ نہیں کہہ رہی اللہ میری حفاظت فرما، اللہ مجھے بچا لے اس دشمن سے، یہ نہیں کہہ رہی ہے. اس کی زبان سے جو جملے نکلتے ہیں وہ جملے یہ، یا ربی ثبت قدمی علی دینک، اے اللہ اس کی دی ہوئی سزاؤں پر میرے قدموں کو ثابت رکھنا، میرے ایمان پر، کہیں اس کی سزائیں مجھ سے میرا ایمان نہ چھین لیں. جان جا رہی جائے، روح نکلتی نکل جائے، لیکن ایمان میری آخری حالت میں ایمان نہ نکل جائے. کہیں ایسا نہ ہو کہ اس کی دی ہوئی تکلیفیں
میں جھک جاؤں اور اس کی بات مان لوں اور ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھوں. ایسا نہ ہو کہیں. ثبت قدمی علی دینک، اے اللہ اپنے دین پر، اپنے اس ایمان پر میرے دل کو ثابت قدم رکھنا، میرے قدم کو ثابت رکھنا، میں بہکنے نہ پاؤں، ایمان مجھ سے نہ چھین لیا جائے. یہ دعا اس کے منہ سے